Okay, jogging, parts of speech, noun or verb. Means both. According to use, you can use this word. Now, meaning well known. Jogging like जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग मतलब not very fast, not very slow, moderate running called jogging. Okay. Now, here is a synonym of the word. Running, trotting, trotting, slow running. Okay. That's called jogging. Antonyms of the word sitting, resting, inactive. How can you use in the sentence? She goes jogging every morning to stay fit. Now, next one. Sprinting. Yes, Sprinting. Sprinting. Sprinting भी दौड़ से ही related है. Okay. Now, parts of the speech, noun or verb. Now, synonyms of the word racing, dashing, running at full speed. It's a high speed running that called sprinting. Sprinting. Like केन्या का है ना वो धावक, क्या नाम है उसका? बहुत ही फेमस है. केन्या का ही है ना, कहाँ का है? नहीं, केन्या का नहीं, काला सा है, बट हम बहुत ही फेमस है. उसका रिकॉर्ड है 100 मीटर में है ना उसका भी. नो एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हम अभी उसेन बोल्ट. यस, उसेन बोल्ट जमाइका का है. मैम, उसेन बोल्ट. हाँ हाँ. अच्छा मैम, ये धावक के लिए बोलते हैं, मतलब क्या हाँ एग्जैक्ट जी. मीनिंग क्या है? स्प्रिंट स्प्रिंटिंग मीन्स होता है जब तेज दौड़ा जाता है ना, अच्छा, तेज दौड़ को स्प्रिंटिंग बोलते हैं. ठीक है जैसे मैम. पीटी उषा। जमाइका का, हाँ, पीटी उषा को ये बोल सकती हैं. जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है तो जमाइका का है उसेन बोल्ट. हाँ, उसका रिकॉर्ड वो ओके, स्वयं तोड़ा है, अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है. 9 सेकेंड में ठीक, 100 मीटर का रेस दौड़ा है वो ना. नो हाँ, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वॉकिंग, crawling, slow movement. Now using sentence. He won the race by sprinting the last 100 meters. Okay. Now next, marathon. It's a type of running. Okay. Marathon also. It's a moderate speed. Right. Now parts of speech, noun. मैराथन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे. Synonyms of the word endurance, रेस. जिसके पास क्षमता होती है वही मैराथन 45 किलोमीटर रहता है. वो धीरे 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 एक मॉडरेट स्पीड बना के वो अचीव करता है अपने एम को. ना लॉन्ग डिस्टेंस रेस. मैराथन मीन्स क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी डिस्टेंस का रेस होता है. एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंट, तेज, short distance race. Both are correct. Now use in sentence. Completing a marathon requires significant training and stamina. Now next word, race. It's also kind of running. Okay, now parts of speech. Noun or verb means दौड़. Synonyms of the word contest, competition. देखिए competition की spelling भी important है. COMPETITION. ठीक है. कहीं कहीं आपको ए लगा देंगे, ओ लगा देंगे. Many types of deviation you can see in the examination. But if you find the right answer according to your practice. Okay. Now sprint. Now antonyms of the word rest, relaxation, and context. Now, use in sentence. The horse race was thrilling till the very end. Now, track. Track, TRACK. Track also parts of speech, noun or verb. Okay. Now, synonyms of the word. Track means रास्ता होता है, well known है आप लोग को. ठीक है. ट्रेन का ट्रैक होता है ना, पटरियां होती है ना, रेल की पटरियां. Synonyms of the word path, course, and trail. Now, antonyms of the word fast track, lost, confused. Now, use in the sentence. The athletes warmed up on the track before the race. Trail. 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 Trail means क्या बोलते हैं ना, ट्रायल कर रहे हैं. Okay. Now, parts of speech, noun or verb. Synonyms of the word path, track, route. इसके भी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा. ROUTE. ठीक है. Now synonyms of the word clear path, paved road. Use in sentence. Hikers followed the trail through the
dense forest. Now treadmill. आजकल बहुत ये चर्चा में रह रहा है ट्रेडमिल. TREAD. TREAD. Please wait 1 second, please. Okay, just wait, please. Now next, treadmill. TREADMILL. Treadmill parts of speech. Noun. Now synonyms of the word: running machine, exercise machine. Antonyms of the word: outdoor running and natural terrain. Now use in sentence. When the weather is bad, she uses the treadmill for her daily run. Now endurance. अभी जस्ट हम लोगों ने इसको पढ़ा. ENDURANCE. Excuse me, ma'am. Endurance. Yes, मैम ma'am. ये ट्रेडमिल हिंदी में मतलब क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ट्रेडमिल आप एक समझ सकते हैं कि दौड़ने वाली मशीन, हिंदी में बोल सकते हैं. अच्छा, आजकल आप एक्सरसाइज देख रहे के लिए वो। हैं एग्जैक्टली उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं, कितने की हाँ हाँ स्पीड में हाँ, आपको समझ दौड़ना है, ठीक है ना. वो वही है, ठीक। एक प्रकार से एक्सरसाइज मशीन है. ठीक है मैम. आजकल ओके. जिम में भी मिलती है ना मैम ये मशीन? जी, आजकल नहीं, हर समय से जिम में ही मिली है. अब ट्रेंड आ गया, लोग घर में रख रहे हैं ट्रेडमिल. जी। बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है, लोग अपने घरों में रखना स्टार्ट कर दिए हैं. ENDURANCE. देखिए इस सबकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सब कॉमन वर्ड है. ठीक है. TREADMILL. कहीं आपको सिंगल एल दे देगा, कहीं ए हटा देगा, ई हटा देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक है. ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं. इंड्योरेंस. ENDURANCE. इंड्योरेंस. पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन. मीन. Okay. Now, synonyms of the word: stamina, perseverance, and resilience. Sorry. Okay, this word is important. RESILIENCE. Means यल के पहले भी आई, यल के बाद भी आई, फिर ENCE. Resilience. Now, antonyms of the word: weakness, fragility, and impatience. Now use in sentence. Long distance runners need high level of endurance. Now speed. Well known है. Yes, speed, double ED speed. Noun and verb both. You can use mean gati. Okay. Synonyms of the word: velocity. Important word. VELOCITY. Velocity. Quickness. Rapidity. Now antonyms of the word: slowness, crawl, and deceleration. Also important. DECELERATION. Now use in sentence. The cheetah is known for its incredible speed. बहुत तेज दौड़ता है. पता है ना, चीता की दौड़ बहुत तेज होती है. चीता की चाल. और बोला गया है ना एक बाजीराव में, चीता की चाल और बाज की नजर, और बाजीराव के तलवार पे शक नहीं करते. नेक्स्ट वर्ड: पेश. PACE. पेस. पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन एंड वर्ब. हिंदी मीनिंग कदम. पेस बोलते हैं ना, पेस करना, बढ़ना भी होता है. आगे बढ़ने के लिए भी पेस वर्ड यूज करते हैं. नो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड: टेम्पो, स्पीड, रिदम. ओके. नाउ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड: halt, stop, stand still. Now use in sentence. He set a steady pace throughout the race. Now next, distance. 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 Parts of speech. Noun. Distance well known.
दूरी। अब देखिए डिस्टेंस को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, यस ई लगा के, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लेंथ, रेंज, okay, synonyms of the word length, range and span. Antonyms of the word proximity, nearness and closeness. Use in sentence: the marathon covered a distance of 26.2 miles. ठीक है, ये सेमी मैराथन का डिस्टेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और वर्ब। हिंदी मीनिंग प्रशिक्षण। नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कोचिंग, instruction, exercise. Antonyms of the word rest, break, inactivity. Use in sentence: athletes undergo rigorous training to enhance their performance. Now, athlete, 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 parts of speech, noun, meaning well known, khiladi. Sorry. Synonyms of the word sportsman, competitor. This spelling is also important: COMPETITOR, and player. Now, antonyms of the word couch potato, important. Now, inactive person. Okay. Now, use in sentence. देखिए ये जो फ्रेज है कोच पोटैटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कोच पोटैटो होता क्या है? इनएक्टिव गाइडर, जिसे बोलते हैं ना, जो गाइडेंस करता है, जो इनएक्टिव रहता है, उसके लिए कोच पोटैटो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे कि उन्हें पोस्ट तो दे दिया गया है कोच का, लेकिन वो कोचिंग अच्छे से दे नहीं रहे हैं, के लिए कोच पोटैटो यूज किया जाता है वर्ड। Now, use in sentence: an athlete needs a combination of skill, determination and endurance. Runner, well known, RUNN, देखिए रनर में डबल एन हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, हिंदी मीनिंग रनर समझते हैं, दौड़ने वाला। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंटर, स्प्रिंटर, जॉगर, रेसर। Antonyms of the word walker, stroller. Use in sentence: the fastest runner won the gold medal. Fitness, FIT यानी डबल एस, fitness. Parts of speech, noun. Synonyms of the word health, well-being, exercise. Antonyms of the word unfit, unhealthy. Use in sentence: regular exercise is essential for maintaining good fitness. Stamina, STAMINA, स्टेमिना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। स्टेमिना समझते हैं ना कि आपकी बॉडी की स्टेमिना कितनी है, ताकत से रिलेटेड है, स्थायित्व से रिलेटेड है। ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड विगोर। विगोर इंपॉर्टेंट वर्ड। नाउ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वीकनेस, फैटिक, थका हुआ, एग्जॉस्शन, बोलते हैं एग्जॉस्ट हो गए हैं। Okay, now use in sentence. Building stamina is crucial for long distance runner. Now cardio, देखिए ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कार्डियो वर्ड किससे रिलेटेड है, बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है? तो कार्डियो क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड। कार्डियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होते हैं? वो हार्ट के डिजीज को क्योर करते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ। नाउ कार्डियो, हार्ट। Okay, now synonyms of the word aerobic, cardiovascular. Okay, aerobic आप लोग जब एक्सरसाइज करते होंगे तो उसके टाइप्स होते हैं, aerobic उसी में आता है। नेक्स्ट आता है anaerobic and sedentary, इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लिया कार्डियो का अपोजिट क्या होता है, तो दिमाग ना इधर उधर जाने लगेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो सेडेंट्री, SEDENTARY, सेडेंट्री। How can you use in sentence? Cardio exercises improve heart health. Okay. Now warm up. Warm up exercise, जब कोई भी खिलाड़ी होता है ना, अपना खेल स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करता है 15 मिनट, 15 मिनट 15 मिनट्स वो वार्म अप करता है, तब जाके वो अपना रियल जो उसका गेम रहता है उसमें एंट्री करता है, ठीक है। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड वर्ब। हालांकि जो एक्सरसाइज भी करते हैं वो लोग भी पहले वार्म अप करते हैं, फिर अपने जो उनका हार्ड एक्सरसाइज होता है उसको ट्राई करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेचिंग एंड
प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज के पहले किए जाने वाला जो होता है उसे बोलते हैं वार्म अप, प्रिलिमिनरी exercise. Now antonyms of the word cool down, rest. Use in sentence. It's essential to do a proper warm up before intense workout. Interval, अंतराल, well known. हर मूवी में आप लोग को इंटरवल मिलता होगा. अब देखिए इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है. INTERVAL, इंटरवल. Parts of speech, noun. हिंदी मीनिंग अंतराल. Synonyms of the word gap, break, pause. Antonyms of the word continuity and uninterrupted. Uninterrupted में डबल आर आएगा. UNINTERRUPTED. Interrupted. Uninterrupted. Use in sentence. High intensity interval training can be very effective for fitness. Stride. ठीक है. Stride. Yes, TRIDE. Stride. Stride means क्या होता है? कदम, पेस. बोलते हैं आगे बढ़ने के लिए भी स्ट्राइड वर्ड यूज किया जाता है. Okay. Parts of speech, noun and verb. Now meaning kadam, stepping, you can say. Now synonyms of the word step, pace, gait. Important word. GAIT. Gait means भी क्या होता है? कदम भी होता है, आगे बढ़ने के भी सेंस में होता है. Important word. Now antonyms of the word stumble, trip, hesitation. Now use in sentence. He increased his stride. He increased his stride as he approached the finish line. Breathe. Saas. BREATH. Breathe. Parts of speech, noun and verb. Now synonyms of the word. Respiration. देखिए रेस्पिरेशन सिस्टम किससे रिलेटेड है? श्वास से. जैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. रेस्पिरेशन. इनहेलेशन, इनहेल करना. हम लोग इनहेलर लेते हैं ना जब जुकाम होता है, तो इनहेलर वही है, इनहेलर. ओके. नो एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड. सफोकेशन, दम घुटना. सफोकेशन, ब्रीथलेसनेस. ओके. दिस स्पेलिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट. हियर इज अ डबल एस. BREATHLE double S यानी डबल एस. ब्रीथलेसनेस. Now use in sentence. Deep breaths help in calming down after a workout. Shoes. 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 Noun. जूता, well known. Synonym footwear. Sneakers. Sneaker. एक ब्रांड भी है शूज का. SNEAKERS. Sneaker related to shoes. Trainers. Now antonyms of the word. Barefoot, unshod. Unshod important word. अगर पूछ लिया गया शूज का अपोजिट क्या होगा, अनशोर्ड अगर दे दिया तो दिमाग कहीं नहीं जाएगा, अनशोर्ड पे जाएगा ही नहीं. ठीक है. जिसने पढ़ा होगा उसको तो जाएगा, लेकिन मुश्किल लोग इस पे परेशान हो जाएंगे. नाउ यूज इन सेंटेंस. गुड रनिंग शूज आर एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरीज. स्नीकर्स. SNEAKERS. Sneakers. Parts of speech, noun. Now synonyms of the word. Athletic shoes and trainers. Antonyms of the word. Heels, formal shoes. Use in sentence. She wore comfortable sneakers for her morning job. Now today's last, no? Yes. Today's last word. Laces. लेस होता है ना, या लेस CES, जो शूज में होते हैं, डोरी लगी होती है ना, उसको बोलते हैं लेस. नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच, nouns and verb. Synonyms of the word. Strings and ties. Antonyms of the word. Unfastened and loose. Now use in sentence. Make sure your shoelaces are securely tied before running. Yes, do you have it? क्या पढ़ रहे थे हम लोग जी? वॉइस है ना? वॉइस पढ़ रहे थे. वॉइस में हम लोगों ने कल एक्टिव मतलब जो मेन वर्ब्स होती हैं, टेंस होते हैं, उनकी वर्ब्स जान ली थी. इसका स्ट्रक्चर क्या किस में होता है ये जान लिया था. हम लोगों ने ये जान लिया था कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है. जैसे कि
इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इनका पैसिव नहीं बनता। लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं ये वाली, इनका नाम हमने दे रखा है, इनका पैसिव नहीं बनता, कभी बनाने की कोशिश भी न करिएगा। दूसरा जो है कुछ अंडरस्टूड वर्ड होते हैं, जैसे पब्लिक है, पुलिस, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इटीसी अंडरस्टूड रहते हैं, ये लिखे नहीं जाते जनरली पैसिव वॉइस में, क्योंकि पुलिस अरेस्ट अगर कोई होता है पुलिस ही अरेस्ट करती है। प्रोनाउन जो है हम इसमें जाने थे सब, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हमको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में चेंज करने में चीजें जरूर लगती है, उसमें टेंस है और कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है, उनको जानना जरूरी होता है। प्लस जो है प्रोनाउन को जानने की जरूरत होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस वहां पर हमें बदलना होता है। दूसरी एक चीज थी कि हमें जो है कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो वर्ड्स होती हैं वो अपना जानने की जरूरत होती है, क्योंकि वो चीजें अगर आ गई तो फिर हम जो बाई करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो नहीं लगेगा, फिर वही प्रीपोजिशन लगेगी बाई हट करके। फिर हमने पैसिव का स्ट्रक्चर जाना था यहाँ पर कि एक्टिव के जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा और पैसिव में क्या क्या चीजें हम लगानी पड़ेंगी हमको। फिर जो है हम लोगों ने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर जो है हमने देखा था, नहीं तक तो किया था क्यों? यस बोलते रहिएगा, हाँ ना में जवाब आता रहेगा तो मजा आता रहेगा, वरना पढ़ाई में मजा नहीं है। यस सर, तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम इस वजह से शायद मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। कोई बात नहीं है, आ गई है, बढ़िया है, धन्यवाद। हम लोगों ने कल देखा था करना क्या होता है जनरली एक्टिव पैसिव में, थोड़ा हम इसको मिटा रहे हैं, कल हम लोगों ने कर लिया था वही, काइंडली वेट। इसमें सबसे पहले करते क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को इसका हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ये सबसे पहली प्रक्रिया होती है। और जो उसकी मेन वर्ब है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो उसका इज एम आर इस्तेमाल कर लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को चिपका दिए, मामला हो गया। ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा मामला यहाँ पर फंसता है आपका इंट्रागेटिव और WH वर्ड। तो इंट्रागेटिव दो प्रकार के हम लोगों ने कल पढ़े थे, एक तो आएगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब बाहर निकाल के इंट्रागेटिव बना दिया जाएगा और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से जो है इंट्रागेटिव बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर कोई भी हो, चाहे वर्ड हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके बनाया गया हो, चाहे कि वर्ब निकाल के WH बनाया गया हो, दोनों को लगभग सेम ही होता है। हम लोगों ने कल देखा था जैसे सी कॉल्स है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, कॉल्स यू, इसको तो हमने बना दिया सब्जेक्ट, और कॉल्स है इसको जो है हमने थर्ड फॉर्म में बदल दिया, सॉरी इसके लिए हमने बी की फर्स्ट फॉर्म लगाई। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इजएमआर यू के अकॉर्डिंग हमने आर लगा दिया। हमने काल का जो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म कर दिया, उसकी काल्ड हो गया, और बाई करके जो इसका सब्जेक्ट था इसका ऑब्जेक्टिव केस हमने हर कर दिया। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर सभी को पता होता है। अब बात आ जाती है कि इसका इंट्रागेटिव की, तो इंट्रागेटिव की अगर हम बात करें तो सी है, प्रेजेंट का टेंस है, तो इस यहाँ पर हम इजे लगा देंगे। जब इंट्रागेटिव बनाएंगे तो इज सी कॉल यू, इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट बदलेंगे तो यू के अकॉर्डिंग जो है हम आर लाएंगे, यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमने आर लिख दिया, आर यू आ गया। अब जो है वर्ब वही सेम आ गई यहाँ पर, और बाई लगा करके ऑब्जेक्ट फिर से आ गया यहाँ पर। यहाँ तक के हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अगर इसमें जो है WH वर्ड आ जाता है तो सेम प्रोसेस है इसका जो कि हेल्पिंग वर्ब का हमने बनाया था। देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इस वाले में क्या लिखा है, आर यू कॉल्ड बाई हर, इसमें भी लिखा है आर यू कॉल्ड बाई हर। इसके पहले WH वर्ड जो है आप चिपका दीजिए, जो भी लगा हुआ है उसको एज इट इज रखा रख दीजिए। बाकी स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के जो क्वेश्चन वर्ड बनाए जाते हैं इंट्रोगेटिव, वैसे ही यहाँ पर लगा देनी है, कोई बदलाव नहीं करना है। अगर निगेटिव है तो जैसे जनरली जो है हम एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है लगाते हैं नॉट, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ जो बी फॉर्म की वर्ब आएगी उसके बाद नॉट चिपकाएंगे हम। अगर इंट्रागेटिव आया है यहाँ पर तो इंट्रागेटिव में हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद चिपकाएंगे, मतलब यहाँ पर चिपकेगा, आ जाएगा। WH वर्ड है, सेम प्रोसीजर वही है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, बाकी हो गया।
सारा का सारा प्रोसीजर जो है वैसे के वैसे है, सिर्फ WH जो है अलग से चिपका देंगे। WH में जो है एक हु का जो पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। एक्टिव वॉइस अगर देखें इसका, हु मेक्स अ नॉइज होता है, तो हु को हम हु ही रख सकते हैं, और हु का ऑब्जेक्टिव केस हम बाय हुम भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो हु जो है जनरली यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो इसको अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, लेकिन इसकी पोजीशन यही रहेगी, पोजीशन जो है इसकी यहीं पर रखेंगे। वहां पर क्या होता था, ऑब्जेक्टिव को जो है ये जो जनरल सब्जेक्ट में उसको हम उठा के इधर ले आते थे। हाँ, ये इसको यहाँ नहीं करना, इसको सेम का सेम यहीं रखे रहना है। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है या सब्जेक्टिव केस है अपने पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव केस ही लगा रहने देंगे अगर, तो इसको हमें बाई लास्ट में ले जाना पड़ेगा। जैसे हु का हु ही रखा रहने दिया हमने। अब मेक्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका जो है हु जनरली सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, हालांकि प्लूरल भी कंसीडर होता है, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली सिंगुलर ही होता है। तो हम यहाँ पर हु के अकॉर्डिंग जो है हमने इज लगा दिया, बी फॉर्म की वर्ब लगा दिया हमने, आ नॉइज को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ये वाला इधर से इधर चिपका दिया, मेक का जो थर्ड फॉर्म मेड बना दिया, क्योंकि बाई यहाँ पर लगाया जाता है तब ऑब्जेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट चूंकि यहीं पर सब्जेक्ट ही बना पड़ा हुआ है, बाई लगा करके हम छोड़ दिए, मामला यहीं पर क्लियर हो गया। अगर जो इसको बाय होम से बनाते हैं हम, तो बाई पहले लगा दिए, अब जब बाई आ गया तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम आएगा, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन हमेशा जो है हुम ही ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है। आपसे अगर बाई हु करके ऑप्शन दिया होगा, जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो एक बाई हु भी दिया होगा आपका, ध्यान रखिएगा बाई हु नहीं हो सकता, बाई प्रीपोजिशन है, वो अपने साथ में ऑब्जेक्टिव केस लेगा तो हुम करना ही पड़ेगा, इसलिए जो है बाई हुम इज अ नॉइज मेड। अब यहाँ पर बाई लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी बाई लगा के आपको दे देगा कंफ्यूजन करने के लिए। तो इस तरह से कल जो है हम लोगों ने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले ये देख लीजिए, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? स्क्रीन क्लियर है सबको? जी, आवाज मिल रही है? स्क्रीन क्लियर बोलते हैं? यस सर। देखो ये सारी चीजें ऐसा कतई आप लोग ये ना सोचिए कि मुझे तो आती है भाई साहब, मुझे करने की क्या जरूरत है। देखो पहली चीज तो एक ये है, ये रिवीजन हो जाएगा आपका। दूसरी चीज एक ये है, जब आगे के भी हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ेंगे तो इन चीजों का काम वहां पर आएगा, क्योंकि बेस यही चीजें, जब यही चीजें नहीं समझ पाएंगे तो आगे इंपरेटिव और जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है सेंटेंसेस है उनका फिर पैसिव बनाना आसान नहीं होगा। इसलिए धैर्यपूर्वक इनको जो है आप देखते जरूर रहिए। अब इसमें देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर जनरली होता क्या, हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसके। एक तो सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब आईएनजी फॉर्म आती है, और प्लस जो है ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो है एक्टिव का स्ट्रक्चर है, मतलब जनरली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस स्ट्रक्चर में यूज होता है। अगर हम इसको पैसिव बना रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को सॉरी जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। सबसे पहले तो करना पहला काम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना जाता है। अब जो है इज एम आर चूंकि यहाँ पर पहले से आपको मिलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इसको बनाएंगे, यहाँ पर जो एक्टिव है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ये यूज हुआ होगा, लेकिन अब जब इसको बना देंगे आप यहाँ पर तो अब इसके अनुसार इज एम आर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर सिंगुलर था तो इज यूज हुआ होगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्लूरल है, आपने प्लूरल को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको आर इस्तेमाल करना है, इज इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वर्ब जो है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको देनी है। अब चूंकि वर्ब की यहाँ पर आपको मिल रही है फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, V1 प्लस ING होता है। तो V1 की ये जो ING होता है, ING की जगह पर जो है हम बीइंग लगा देते हैं, ING की जगह पर क्या करते हैं हम बीइंग लगा देते हैं, और जो V1 है इसकी जगह पर हम B3 लगा कर देते हैं। जनरली पैसिव वॉइस में B3 का इस्तेमाल होता ही है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता ही है, सिंपल वर्ब का। लेकिन अगर कंटिन्यूअस टेंस में यूज की गई है वर्ब तो चूंकि ING फॉर्म होता है, ING फॉर्म के लिए जो है हम यहाँ पर बीइंग लगा देते हैं। ऊपर जो है हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर में सबसे पहले ही पढ़ा था कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं
कौन कौन सी होती हैं? जैसे फर्स्ट फॉर्म की अगर वर्ब आएगी सेंटेंस में तो हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का पूछ लिया गया है तो हम उसमें सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। अगर परफेक्ट है या वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो हम वहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है तो जनरली जो है उसमें बीन ही लगता है। और अगर जो है कॉन्टिन्यूअस है मतलब वी प्लस आई एन जी है, कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म है, तो वहां पर जो है हम बीइंग मतलब फोर्थ फॉर्म में बीइंग का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में करते हैं। वही चीज यहाँ पर बताई गई है आपको। यहाँ पर ये फोर्थ फॉर्म है तो यहाँ पर हम बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल कर दिया और बाई लगा दिया प्रीपोजिशन, और जो सब्जेक्ट यहाँ पर ये बना था इसको उठा करके ले आकर के यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ये तो हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया कंटिन्यूअस का। अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है मोहिनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार हम क्या करेंगे, आ सॉन्ग को जो है हम सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिए, बोलो बन गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मोहिनी भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, उसके अनुसार इज लगा हुआ है। अब ये सॉन्ग भी यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अनुसार भी इज ही यहाँ पर सही है, तो हम इसको इज का इज ही रखने देंगे। प्लस वर्ब की जो है यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ये यूज की गई है ये वाली, तो उसके लिए जो है हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बी की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, बीइंग होती है। और प्लस जो है वर्ब की बची वहां पर फर्स्ट फॉर्म उसका थर्ड में चेंज कर देंगे तो सिंग का हो जाएगा क्या, संग हो गया भाई। और लास्ट में जो है हमने बाई लगा करके यहाँ पर मोहिनी चूंकि सब्जेक्ट है इसको जो है सीधे सीधे उठा करके हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस कर दिया। सेंटेंस क्या बन गया, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मोहिनी। समझ में आया, बोल दो हाँ जी, कुछ तो बोल दो, बोल भी दो, मेरी आवाज आ रही है जी? सर आपकी तो आ रही है, मेरी आ रही है। नहीं अब आई है, अब आई है। जब किसी की कोई बोल रहा हो माइक आप लोग देख लेते हैं उसका ब्लिंक कर रहा है तो कोई भी बोल दिया करो, इससे हाँ ना पता चल जाए। आप मुझे सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तब तो ठीक है, वरना हमारी राम कथा का परिणाम ही नहीं मिलेगा, ना हमको ना आपको, नो डिस्कनेक्ट सर, हो बीच जाएंगे, बीच में बगड़ हो बोलते जाएगा। रहते हैं बट नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सारी मेरी। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया सिंपल उसका कंटिन्यूअस का। अच्छा कंटिन्यूअस में भी दो प्रकार के टेंस आपको मिल जाएंगे, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में दो प्रकार के हो जाएंगे, इंट्रागेटिव एक WH वर्ड होगा और एक हेल्पिंग वर्ब से होगा, और एक जो है आपको इंट्रागेटिव निगेटिव भी मिल जाएगा। और इंट्रागेटिव निगेटिव में भी दो प्रकार के मिल जाएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से होंगे और दूसरे जो है WH वाले भी आपके इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्ट्रक्चर के साथ साथ में हम जैसे इज एम आर ऊपर अगर बनेगा, अगर हम एक्टिव का स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो जैसे यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है तो इसको इज उठा लाएंगे इधर, इसे बनाएंगे और फिर सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा। अब इसको अगर पैसिव में लेकर के आएंगे तो जो वर्ब है तो वर्ब एज इट इज वैसे ही बनी रहेगी। ध्यान रखना होगा जो सब्जेक्ट यहाँ पर दे रहे हैं वर्ब ये उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अगर यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल देना पड़ेगा, आई है तो एम देना पड़ेगा, सिंगुलर है तो इज देना पड़ेगा। ऊपर जो एक्टिव में वर्ब दी हुई है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देनी होती है, पैसिव में आपको वर्ब देनी है तो जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको आपने सब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, इसके अनुसार आपको यहाँ पर वर्ब देनी है। फिर आगे चूंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी तो बीइंग चिपका देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए बाई लगा करके इसका जो ऑब्जेक्ट है उठा के यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसमें जो है अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर है। देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे ऐड कर दीजिए, मामला सेट हो गया। ऐसा ही सब पे होता है, प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। जैसे अगर ये ऊपर वाला होता इंट्रोगेटिव बना होता सिंपल में, कंटिन्यूअस का अगर इंट्रोगेटिव बना होता तो इज मोहिनी सिंगिंग अ सॉन्ग बना होता। जी बोलो हाँ, समझ रहे हो, इज मोहिनी सिंगिंग अ सॉन्ग बना होता, यस नो बोलिए कोई लोग, सुन रहे हैं। अब इज अगर बना होता, अब इसको
अब इसका सब्जेक्ट है आपका आसांग। आसांग के अनुसार जो है आपको पैसिव में बनानी है वर्ब। आसांग चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज का इज ही रहने देंगे यहाँ पर। अगर आज यहाँ पर सॉन्ग्स होता तो इज नहीं होता, फिर यहाँ पर आर हो जाता। हम मान ले आ नहीं है, यहाँ पर सॉन्ग्स कर दिया गया। अगर यहाँ पर हम सॉन्ग्स कर देंगे ये, तो यहाँ पर भाई आ गया आर, यहाँ पर आ गया आर, फिर इज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आसांग है तो इज ही हमारा सुटेबल है, इज का इज ही रहने दिया। आसांग को हमने सब्जेक्ट बना दिया। वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म है, चूंकि बीइंग लगा दिया, स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा। और सिंग का जो है थर्ड फॉर्म हमने सैंग कर दिया। बाई लगा करके जो मोहिनी है, मोहिनी को उठा करके हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया हमारा। बन क्या गया हमारा? इज असांग बीइंग संग बाई मोहिनी। एक्टिव इसका क्या था? इज मोहिनी सिंग अ सॉन्ग। पैसिव बना दिया आपने। एक मिनट जरा वेट करना। जी सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं? जी सर। यस सर, आ रही है बस। स्क्रीन दिखने लगी? यस सर। चलिए, अब इसमें क्या है, अगर WH पूछ लिया गया है आपसे तो WH वर्ड दिया होगा, उसके बाद जो है जैसे वाई मोहिनी, वाई इज मोहिनी सिंगिंग सॉन्ग, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिया होगा। तो यहाँ पर आप उसको आईजीटी रखे रहने देंगे WH वर्ड को। अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग यूज कर देंगे। बीइंग लगा करके संग बाय मोहिनी कर दिया, मामला सेट हो गया, वैसे के वैसे बन गया। अगर इंट्रागेटिव आ गया है, WH वर्ड हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से हो इंट्रागेटिव, आप जो सब्जेक्ट के बाद जो है लगाएंगे नाट। जब एक्टिव बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा देते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नाट लगा के बीइंग संग बाय मोहिनी, मामला क्लियर हो गया। अगला आता है आपका WH से हु वाला, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सेम कंडीशन वही है, हमने जो इसको बाय होम से बनाना है या हु से बनाना है, ये अपने पे डिपेंड करता है या स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे। बाय होम से बनाना है हमको तो बाय होम हमने लिख दिया उसको, वो का ऑब्जेक्टिव केस। इज का जो एडजेक्टिव उतार दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगी। फिर जो है हमने इसके ऑब्जेक्ट को हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसलिए बीइंग लगा दिया, और बचा यहाँ पर सिंग, इसका जो है थर्ड फॉर्म करके संग कर दिया, मामला सही हो गया। इसको हु अगर बनाना हो तो यहाँ पर हमने जो है हु कर देते और सेम स्थिति यही रहती, बाकी का स्ट्रक्चर यही रहता, और संग आगे बाई लगा करके यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते। बन गया, स्थिति बन गई इसकी भी। हु से भी बना सकते हैं और बाई होम से भी बना सकते हैं। अगला आपका स्ट्रक्चर है परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस का अगर हम स्ट्रक्चर एक्टिव का देखें तो भाई यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट दिया होता है। ये जो है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको पैसिव बनाते हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चूंकि जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है इसलिए बी की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है।
तो इस थर्ड फॉर्म की वजह से जो है हम बी की पी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये जरूरी होता है इस्तेमाल करना हमारा। तो बी का थर्ड फॉर्म हम बीन इस्तेमाल कर दिए, और थर्ड फॉर्म वर्ब की पहले ही मिल ही रही है, एडजेक्टिव हम उठा करके यहाँ रख दिए, और बाई लगा करके जो ये सब्जेक्ट इसका बना इसको उठा के लाके हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ये स्ट्रक्चर आपका पैसिव का बन गया। इसके आधार पर देखिए भाई, मीना हैज बाट अ कार, मीना हैज बाट अ कार। देखिए मीना जो है सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आ गई यहाँ हेल्पिंग वर्ब। बाट मेन वर्ब है, आकार इसका जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसको अगर हमें पैसिव बनाना है तो आकार को उठा करके हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस का। आकार चूंकि स्वयं अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हम ठीक ठाक रख दिए। अगर यहाँ पर कार्स होता तो हम यहाँ पर हैव करना पड़ता हमको, और बीन चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पहले से लगी है, इसलिए हमने जो है इसको बीन किया बी की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर बात जो है थर्ड फॉर्म इसकी हो रही है ऑलरेडी, और बाई लगा करके हम मीना को उठा के ला के इधर ऑब्जेक्ट बना दिए, बन गया अकार हैज बीन बाट बाई मीना। मीना हैज बाट अकार हैज बीन बाट बाई मीना। अगर निगेटिव अगर आता है इसमें तो हमें ध्यान रखना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें देते हैं या सब्जेक्ट के बाद में देते हैं। अगर इसमें देख लेते हैं, इसका इंट्रोगेटिव अगर होगा, इंट्रोगेटिव में क्या बन जाएगा आपका, वहां पे अगर बनेगा एक्टिव में तो हैज मीना बाट एकार हो जाएगा। हैज इसको उठा के यहाँ कर देंगे, हैज मीना बाट एकार हो जाएगा एक्टिव का। अब पैसिव अगर बनाएंगे तो हैज को एज इट इज हमने रख दिया, आकार को इसको जो है हमने सब्जेक्ट बना दिया, और बीन को हमने जो है चूंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है इसलिए बीन लगा दिया। बाट हमारा थर्ड फॉर्म मिल ही रहा है, बाई लगा करके मीना हमने जो ये सब्जेक्ट इनका है उठा करके यहाँ ले आए, मामला क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ पा रहे हैं जी? यस या नो बोल लीजिए। यस सर, यस सर। वाई का अगर इसमें WH वर्ड का आता है, जनरली सबका स्ट्रक्चर एक ही है, बस हम सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब बदल रही है। वहां पर इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे थे तो यहाँ पर हैज या हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रक्चर सबका एक ही है। WH वर्ड है उसको एडजेक्टिव उठा के रख देंगे वैसे वैसे, हैज लगा देंगे या हैव जो भी सब्जेक्ट है आगे, आगे कार जो उसका ऑब्जेक्ट था, इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का उस ये कार है, सब्जेक्ट हमने बना दिया आकार, बीन बाट बाई मीना हो गया। अगर इसमें जो है बना दिया जाए हु वाला सेंटेंस, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, हु को हम एज इट इज हु रख दिया, हैज सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर किया जाता है इसलिए हैज करते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्ट है द ग्लास इसको उठा करके हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया, और चूंकि यहाँ पर ब्रोकन है थर्ड फॉर्म तो बीन बी की थर्ड फॉर्म हमने बीन लगा दिया, ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है इसको हमने एज इट इज उठा के रख दिया और बाई लगा दिया, क्योंकि बाई के जो हु है ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का दोनों का यहाँ पर काम कर रहा है इसलिए ये यहीं पे लग गया है, बाई आगे हु लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से हम चाहें तो हु को जो है बाई हुम से भी बना दें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हैज जो है एज इट इज रखा रहने देगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। द ग्लास को हमने जो है इसका सब्जेक्ट बना दिया क्योंकि इसका जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दिया, बीन ब्रोकन कर दिया। अब यहाँ पर बाई या हुम करके कुछ आगे लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, एज इट इज मामला सही है। ये बन गया आपका कैसा, परफेक्ट का। अच्छा दूसरा एक सेंटेंस आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जनरली ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, इसका क्या होगा सब्जेक्ट होगा, हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, और बीन इसमें पहले से ही यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ पर टाइम डिनोटिंग फार या सीन्स होता है, और प्लस जो है ऑब्जेक्ट दिया होता है। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का। जनरली ये माना जाता है कि ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता क्योंकि थर्ड फॉर्म में जो है बीन का इस्तेमाल करते हैं हम, तब जो है एक्शन पास कराते हैं उससे, और इसमें बीन पहले से एक्शन पास हो रहा का सेंस दिया जाता है इसलिए इसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन प्रेजेंट ग्रामरियन जो है इसको चेंज कर लेते हैं, देख लेते कैसे चेंज करते हैं।
जैसे जो एक्टिव का इसका सेंटेंस बनता है, शीला हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। शीला सब्जेक्ट सिंगुलर है, जस्ट वेट, शीला जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का इस्तेमाल किया गया है। बीन इसमें पहले से लगा हुआ होता है। सिंगिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अ सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर और सिंस यहाँ पर टाइम ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर 2 आवर्स जो दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसको जो है हम जबरदस्ती बनाना भी चाहें या प्रेजेंट जो हमारे इसको दावा करते हैं कि बन सकता है, कैसे बना सकते हैं हम? अ सॉन्ग को यहाँ पर रख दिया हमने, आ सॉन्ग। अ सॉन्ग को हमने सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि अ सॉन्ग खुद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने हैज कर दिया, हैज बना दिया। अब चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है ही है, पहले से बीन मिल रही है तो हम बीन को एज इट इज लगा देंगे। सिंगिंग यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है तो प्लस यहाँ हम बीइंग लगा देंगे, क्योंकि आईएनजी के लिए बीइंग लगा देते हैं। सिंग का जो है कर देंगे संग, थर्ड फॉर्म कर देंगे। बाई कर देंगे शीला, ठीक है, बाई शीला। और फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, इतना इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। लेकिन जितना हमने अभी तक के देखा है ऐसा स्ट्रक्चर प्रीवियस में हमें मिला नहीं है, लेकिन एसएससी में या दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इसको इस तरह से बना करके लोग पढ़ा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं, कई किताबें ऐसी उसमें है भी है। लेकिन जितना हमने अपना देखा यहाँ पर स्ट्रक्चर ये नहीं मिला है, इसलिए हम इसको वैसा मान के चलते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम ना बनाएं, जैसा पहले के लोग मानते आए हैं अब तक के कि इसका नहीं बनता है, तो हम भी मान के चलें कि वो नहीं बनता है। और अगर बाय द वे स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाता है तो वहां पर आप देखिएगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, हो सकता है परिवर्तन आ रहा है बदल दे कोई मामला। लेकिन रेन मार्टिन के हिसाब से चलेंगे तो रेन मार्टिन में मुझे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला। क्यों, किसी को मिला ऐसा स्ट्रक्चर क्या रेन मार्टिन में जो इसको बनाया गया हो? मिला है किसी को? किसी को मिला है? कोई ऐसे नो बोल दो भाई। मार्टिन में नहीं मिला, लेकिन सर किरण में तो मिला है। हाँ हाँ, वो अन्य किताबों में तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, जनरली जो अपना आयोग है वो रेन मार्टिन को कंसीडर करता है, तो इसलिए मुझे उसके साथ चलना चाहिए। बाकी आप सब लोग खुद शिक्षक हो, यस सर। खुद टीचर हो, अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। जी, कोई कुछ कह रहा है? हाँ जी, चलिए आगे के चलते हैं अगले टेंस पर। अब ये तो रह गए हमारे प्रेजेंट के सारे, अब ये है हमारा आगे का पास्ट का। तो जितने चीजें हमने प्रेजेंट में पढ़ी, 4 टेंस जनरली प्रेजेंट के होते हैं, जिसमें जो हमने तीसरा वाला पढ़ा कि वो जो है नहीं बनता है। ऐसे ही हम पास्ट में देखते हैं। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में? पास्ट इंडेफिनिट में हमको मिलता क्या है? कोई एक सब्जेक्ट मिलता है ना, कोई एक सब्जेक्ट मिलता है और सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीधे जो है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म मिल जाती है और फिर जो है ऑब्जेक्ट मिल जाता है हमें। अगर इसको हम पैसिव बनाएं तो इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। बड़ा कर ले थोड़ा। और जो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में हमने ऊपर बताया था बी की जो है 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म बी, दूसरा होता है वाज या वर, वाज या वर, और तीसरी क्या होती है? बीन। चौथी क्या होती है? बीइंग। क्योंकि यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया गया सेकंड फॉर्म का, तो हम क्या लगाएंगे इसमें से? बी, वाज, वर, बीन, बीइंग में से कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? कोई बता सकता है? बता दीजिए भाई, क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ? बोल दो, वाज वर करेंगे? नहीं बोलोगे। यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना दिए और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है बी की जो सेकंड फॉर्म है इसका इस्तेमाल करेंगे वाज या वर। फिर जो है जो ये वी2 है इसका जो है
V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा करके इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में चिपका देंगे। ये तो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। जी कोई कुछ कह रहा, बोल दो भाई, कह रहे हो। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीता। जी किसी के घर से आवाज आ रही है, बोल रहे हो तो भाई बोल दो, नहीं तो माइक बंद कर लो। इंडिया वॉन द मैच। अब इसको क्या करेंगे हम, ये मैच बन रहा है इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम उठा ले आए, यहाँ पर बना दिए इसका सब्जेक्ट। क्योंकि वन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म वाज अगर कुछ होगी। द मैच यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हमने वाज का इस्तेमाल कर दिया। वन की फर्स्ट फॉर्म वन ही होती है, थर्ड फॉर्म लग दिया, और बाई लगा करके इंडिया को हम यहाँ ले आए क्योंकि उसका सब्जेक्ट है, यहाँ हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। क्या बन गया, द मैच वाज वन बाई इंडिया, इंडिया वॉन द मैच वाज वॉन बाई इंडिया। ये तो आपका हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। अगर इंटरगेटिव में जाएंगे तो बन जाएगा इसका वाज इंडिया विन द मैच। तो क्या बन गया आपका, यहाँ पर वाज को एज इट इज आप रख दीजिए, यहाँ पर द मैच जो है उसका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपने बना दिया इसको। वर्ब की थर्ड फॉर्म वोन कर दिया, बाई लगा करके इंडिया आपने जो इसका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट लिया है। अगर WH वर्ड सामने लगा हुआ मिल रहा है आपको तो उसको सिर्फ आगे चिपका दीजिए, बाकी यही एज इट इज स्ट्रक्चर दिमाग में बना लीजिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर नाट आता है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नाट का इस्तेमाल कर दीजिए, बाकी स्ट्रक्चर जो भी आपका मिल रहा है ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग जो है आप आंसर को डन करिए। अगर जो है इसमें WH वर्ड का जो हु से बनता है, हु ब्रोक द जग, पास्ट इंडिफिनिट में अगर होगा हु ब्रोक द जग, हु सब्जेक्ट के रू और क्वेश्चन वर्ड दोनों है, यहाँ पर ब्रोक सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज करी गई है और द जग इसका जो है ऑब्जेक्ट है। हम क्या कर सकते हैं, इसको हु से बनाएं या बाय होम से बनाएं। हु से बनाते हैं अगर, हु को हमने उठा लिया। अब चूंकि जो है ये बी फॉर्म की सेकंड फॉर्म हम देना पड़ेगा, बी की जो सेकंड फॉर्म क्या होती है वाज होगी, क्योंकि जनरली हु जो है सिंगुलर वर्ब कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम इसको वाज लगा देंगे यहाँ पर। और इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा करके हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। ये क्या बना दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। और जो ब्रोक है इसका थर्ड फॉर्म क्या कर दिया हमने, ब्रोकन कर दिया, और यहाँ पर बाई लगा दिया। बाई के बाद आगे कुछ नहीं लगाया, बाई देम, बाई इट, बाई सेल्फ, इस तरह कुछ लगा के दे देगा आपको, वो चीज गलत होगी। यहाँ पर बाई लगा के ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। अगर होम से बनाएंगे तो बाई होम पहले ही आ गया, और बी फॉर्म की वर्ब वाज दे देंगे। द जग इसका जो है ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना दिया और ब्रोकन कर दिया, मामला सही हो गया। तो इस तरह से जो है हमने प्रेजेंट के चारों टेंस देख लिए और जो है फ्यूचर का इंडिफिनिट देखा। तो आज के सेशन में हम यहीं तक के सेशन को रखेंगे और कल जो है आगे हम पढ़ेंगे कौन सा, फ्यूचर सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का। तो आज का सेशन यहीं तक। किसी को कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, अन्यथा मिलते हैं आपसे कल एज यूजुअल। जी सर थैंक यू। जी सर जी बोले।